JSTL code tag list. So in that first one is out. We have seen that out this tag out tag. It is defined in which tag library? Code tag library. C is the prefix. Okay. So out is used to display the result of an expression. Out का क्या काम है? To display the result of an expression. Okay. So here what we are doing, see, with the help of out, we are displaying the result of an expression. Expression language का symbol है ना, this dollar sign and the curly braces, right? Dollar sign and curly braces, क्या? This is the syntax of expression language. Okay. So out tag is used to display the result of an expression. The expression what we have, this expression I want to display. Welcome to Java T point. Okay, ये display करवाना है मुझे. So I am writing this welcome to Java T point in expression by using expression language syntax. The expression language syntax क्या है? Starting with dollar and this curly braces. This is the syntax of expression language. Output we will get welcome to Java T point only. Then we have covered. Next tag is import. What is import tag? It is similar to include action tag. Include action tag. Okay. So in action elements we have seen various tags. So you just C colon import. C is the prefix of core tag. C is the prefix of core tag. This C import is similar to JSP include action tag. Okay. So if you want to include the content of another page in your JSP page, so you can use the include import tag. You can use the import tag. If you want to import, let us consider here what we are doing. We are importing the URL. ये जो URL है, we are importing the URL in this JSP page. So entire content of this site, what URL we have passed javatpoint.com. The entire content of this site now it is stored in data variable. Data variable. Okay. So what we are doing, we are displaying a result of we want the content of this page. Okay, so it is stored in data variable. Now to display this data variable, okay, to display this data variable, out tag is used. Out in value equal to in the expression. Expression में हम लोग क्या लिख रहे हैं? Out जो है हमेशा expression के साथ में यूज होता है. ठीक है. Out is used to display the result of an expression. So how we are writing the expression? This dollar sign and curly braces. ठीक है. What we want to display this data variable में जो content है क्या है? javatpoint.com का URL है, right? So I want to display this data variable. So we will get the complete content from the javatpoint.com, okay, which is stored in the data variable. Then we have seen one more tag in code tag list. This one, set. Okay. The set क्या है? Used to set a result of an expression evaluated in a scope. हमेशा हम लोग set क्यों करें? Set जो ये है tag है, it is used to set the result of an expression. Result of an expression. Okay, it is used to set the result of an expression evaluated in a scope. रिजल्ट तुमको सेट करना है एक्सप्रेशन का, तो वी विल यूज दिस सेट. सेट टैग यूज करेंगे. सेट टैग हमेशा एवेल्यूएट किसमें होता है? स्कोप. इसका स्कोप डिफाइन करना होता है हम लोग को. जब भी तुम सेट करोगे वेरिएबल को, वी हैव टू सेट दी स्कोप आल्सो. ओके, इट इज इवैल्यूएटेड इन अ स्कोप. नाउ सी what we are doing. C colon set. C prefix of code tag. Variable I have set income. Scope I have taken session, and value in the expression I am taking. Expression I am passing here. Okay, expression 4000 multiplied by 4. This 4000 multiplied by 4, the result is stored in income variable. So now I want to display. Okay, I want to display the result of expression. The expression का result display करवाना है, तो out is used. Okay, the value equal to, कैसे करेंगे out को? हमेशा ये जो out tag है, ठीक है, which is defined in code tag list, तो हम लोग उसको हमेशा क्या करते हैं? एक्सप्रेशन लैंग्वेज के सिंटैक्स में लिखते हैं. ओके, सो बिकॉज आउट टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन. तो डॉलर ये कर्ली ब्रेसेस में राइटिंग इनकम, तो वी विल गेट द आउटपुट फॉर 16000. ओके, 4000 multiplied by 4, that is 16000.
So we have revised. Now we have to see the this tag, remove tag. Okay, next tag is remove tag. कहाँ पे define है ये? C means core tag. C is the prefix of core tag. Okay. So if you want to remove any variable from a particular scope, C variable जब set हुआ होगा उसका कोई scope भी है. Variable का scope भी set करना होता है, right? Now I want to remove the variable, specific variable, okay, from a particular scope. So what we can do, we can use the remove tag. Okay, remove tag removes the variable. Remove tag is to remove the variable. तो फर्स्ट क्या करेंगे, दिस इज सिंटैक्स ऑफ, ये फर्स्ट लाइन क्या, सिंटैक्स ऑफ इंपोर्टिंग, सिंटैक्स ऑफ इंक्लूडिंग कोड टैग लाइब्रेरी इन योर जेएसपी पेज. ये सिंटैक्स है उसका फर्स्ट वन. क्या है ये? दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इंक्लूडिंग कोड टैग लाइब्रेरी इन योर जेएसपी पेज. then tags are there. C colon set, first I am setting a set variable equal to income, सेम इतना जो अभी किए. ठीक है, यहाँ पे नाउ वी आर यूजिंग रिमूव. क्या रिमूव करना है? वेरिएबल इक्वल टू इनकम. आफ्टर रिमूविंग द वेरिएबल, सी फ्रॉम दिस लाइन दिस वेरिएबल इज रिमूव, इनकम वेरिएबल इज रिमूव. ओके, फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन से क्या पता चल रहा है कि इनकम जो वेरिएबल है अभी रिमूव हो गया. तो आफ्टर रिमूविंग अ वैल्यू, इफ यू आर ट्राइंग टू display the result, see what we are doing, C colon out, value equal to dollar income. So nothing is there in this income variable now because it is removed now. So after removing income variable, we are trying to, what we are doing, display the result. So to display the result, अभी देखो, बिफोर रिमूव वैल्यू इज क्या आएगा यहाँ पे? 16,000. आंसर क्या मिलेगा? बिफोर रिमूव वैल्यू इज 16,000. सेकेंड, आफ्टर रिमूव वैल्यू इज, आफ्टर रिमूव वैल्यू इज कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, राइट? बिकॉज अभी तो ये वेरिएबल जिसमें स्टोर था डेटा, result of 4,000 multiplied by 4, it is removed now. So before removing, we are getting the value 16,000, but after removing the variable, ये remove हो गया, ये line से it is removed. So after removing, if you want to display the result, so it will show the empty value. ठीक है, कुछ भी value नहीं आएगा, like this. Before remove value is and after remove value is blank it is. So with the help of remove tag, you can remove the variable. Okay. Now see catch. Catch कहाँ पे define है? Core tag में. It is defined in core tag में. Okay. So it is used for catches any throwable exception that occur in the body and optionally exposes it. See, to catch any exception, throwable exception जो body में occur होता है, उसको catch करने के this tag is used. So this tag is mainly used for the error handling purpose. ये error handling के लिए use होता है. So now see, the catch tag catches any exceptions that occur in a program body. प्रोग्राम की बॉडी में जो भी एक्सेप्शंस होंगे, कौन करेगा उसको? कैच, कैच टैग. ओके, नाउ सी फर्स्ट लाइन, द सिंटैक्स ऑफ इंपोर्टिंग कोड टैग लाइब्रेरी ना, यहाँ से देखो, कोड प्रीफिक्स ही है, तो मींस व्हाट वी आर डूइंग बाय दिस लाइन, वी आर इंक्लूडिंग कोड टैग लाइब्रेरी इन जेएसपी पेज. ठीक है, नाउ द बॉडी टैग आई एम डिफाइनिंग सी कोलन कैच वेरिएबल इक्वल टू कैच द एक्सेप्शन. Variable name I have taken catch the exception. Now what we are doing in this, int x equal to 2 divided by 0. ठीक है, int x equal to, मैंने क्या यहाँ पर डिफाइन किया? 2 डिवाइड बाई 0. ठीक है, ये मेरा जावा का कोडिंग है नॉर्मल. ठीक है, ये टैग के अंदर स्टार्टिंग में परसेंटेज, एंडिंग में परसेंटेज, स्क्रिप्टिंग टैग है, राइट? सी कैश ये क्लोज हो गया. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, सी अभी इफ कंडीशन आई एम टेकिंग सी कोलन इफ भी जो है, इफ टैग इज ऑल्सो डिफाइनिंग कोड टैग. इफ टैग भी कहाँ डिफाइन है? हमारे कोड टैग में डिफाइन है. इफ वन मोर वेरिएबल वी हैव टेकन टेस्ट. ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या लिख रही हूँ? ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंबल है, कौन सा? डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस. तो एक्सप्रेशन में क्या लिख रही हूँ? उसमें कैच द एक्सेप्शन नॉट इक्वल टू नल. ठीक है,
ये है कैच द एक्सेप्शन वेरिएबल। अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू नल है ये वेरिएबल, नॉट इक्वल टू नल है अगर ये वेरिएबल, तो एक्सेप्शन का टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे मैं इसको क्या करवा रही, वेरिएबल का नाम पास कर दिए, ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज में। देन देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, अगर उसका मैसेज चाहिए तो डॉट मैसेज लगा दिए वेरिएबल के आगे। सो वी आर गेटिंग आउटपुट। द टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज टाइप ना, जावा डॉट, अगर नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्ट, 2/0, इट इज कौन सा एक्सेप्शन है ये, जावा डॉट लैंग, इट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ठीक है, नाउ कैच द एक्सेप्शन, यहाँ पे देखो, देयर इज एन एक्सेप्शन, ये लाइन, देयर इज एन एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन, डिवाइड बाय 0, मैसेज मिल रहा है, डिवाइड बाय 0 का एक्सेप्शन है, ठीक है। So it is simple. We have defined one exception here, or with the help of this if condition, we have catch the exception also. ठीक है, एक्सेप्शन का टाइप क्या है, कौन सा एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय 0, इट इज विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। See if tag. Now next tag is if tag. It is used for testing the condition, right? If the expression is evaluated true, अगर एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा ट्रू तो वो पार्ट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल सी, फर्स्ट वी आर सेटिंग द वेरिएबल, ओके, तो सेट टैग यूज हुआ, वेरिएबल इनकम स्कोप सेशन वैल्यूज का ये है, ठीक है। इफ कंडीशन आई एम चेकिंग, अगर इनकम जो है अगर ग्रेटर देन, एक्सप्रेशन में पास करी इफ कंडीशन में, ठीक है, एक्सप्रेशन आई एम पासिंग, इफ इनकम, इफ जो है टेस्ट वेरिएबल में आई एम स्टोरिंग, जो भी रिजल्ट आएगा टेस्ट वेरिएबल आई हैव टेकन, इनकम ग्रेटर देन 8,000 है अगर, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, माई इनकम इज ये, ठीक है। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16,000, 16,000 इज ग्रेटर देन 8,000, राइट, 16,000 इज ग्रेटर देन 8,000, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई इनकम इज, प्रिंट करवाना, आउट इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, इनकम यहाँ पे लिखे, वी विल गेट माई इनकम इज, इनकम का वैल्यू क्या है जो 16,000, माई इनकम इज 16,000। तो अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट होगा ही, कंडीशन ट्रू हो गया ना, कंडीशन ट्रू हुआ कि नहीं, इनकम में क्या है 16,000, 16,000 ग्रेटर देन 8,000 है, यस, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, इनकम क्या है, इनकम में क्या है, इनकम वेरिएबल में 16,000 है। Now the next tag is choose when otherwise, choose when otherwise, so it is like a java switch statement, okay, it is like a java switch statement, choose when otherwise, okay, जहाँ पे हम लोग चूज करते हैं बिटवीन आर नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो सी, द when टैग इज a सब टैग ऑफ चूज टैग, when टैग किसका है, सब टैग है चूज का, ठीक है। तो when में क्या होगा, दैट विल इंक्लूड इस बॉडी द कंडीशन इवैल्यूएटेड बी ट्रू, कंडीशन अगर ट्रू होगा, वो कंडीशन, मतलब when में हम लोग लिखेंगे कंडीशन, ओके, अदरवाइज में, अदरवाइज भी क्या है, सी बोथ when एंड अदरवाइज क्या है, सब टैग ऑफ चूज, ठीक है, सब टैग ऑफ चूज टैग है when और अदरवाइज, ठीक है। अगर when का कंडीशन फॉल्स हो गया तो अदरवाइज टैग में जाएगा वो, द कंडीशन इज फॉल्स, कौन सा पार्ट होगा प्रिंट, अदरवाइज वाला। See this example of choose, example of choose when otherwise, it is like switch statement. First what we are doing, we are setting the variable और उसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं, वेरिएबल इनकम स्कोप सेशन
वैल्यू ये 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू, वी विल गेट योर इनकम इज 16,000। ठीक है, नाउ चूज में हम लोग क्या ले रहे हैं, चूज टैग क्या है, व्हेन एंड अदरवाइज क्या है, जिधर सब टैग ऑफ चूज, तो सी कोलन चूज, यहाँ पे व्हेन कंडीशन देंगे, व्हेन टेस्ट वेरिएबल हमने लिए, इनकम लेस देन इक्वल टू अगर 1000 है, इनकम इज नॉट गुड, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइन प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला लाइन प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो कहाँ पे जाएगा, इनकम इज अनडिटरमाइंड पे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक आउटपुट क्या आना चाहिए इसका। क्या आएगा आउटपुट, अब इतने प्रोग्राम्स देखे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 16,000, इनकम 16,000 लेस देन इक्वल टू 1000 है, 16,000 लेस देन इक्वल टू 10,000 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वो चेक करेगा नेक्स्ट कंडीशन, ये फॉल्स हो गया ना, 16,000 ग्रेटर देन 10,000 के, कंडीशन ट्रू हो गया, इनकम इज वेरी गुड, क्या प्रिंट हो जाएगा, इनकम इज वेरी गुड, तो व्हेन कंडीशन अगर ट्रू होता तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर सब व्हेन कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो इट विल गो इन अदरवाइज ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है, इनकम 16,000, 16,000 है ना, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16,000 ग्रेटर देन 10,000, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इनकम इज वेरी गुड, इनकम इज वेरी गुड, योर इनकम इज, ये यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया by using this out tag। ठीक है, out is used to display the result of an expression। Now see the next example of this choose and otherwise, even and odd, even and odd example using C, when and otherwise, even and odd का example ये, by using choose when otherwise। First we have set the value 10, variable equal to num, वेरिएबल क्या ली मैंने, वैल्यू सेट की 10, वेरिएबल नम। ठीक है, चूज कंडीशन में चूज टैग ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, वैन और अदरवाइज सब टैग है चूज का, तो वैन में क्या दे रही मैं, टेस्ट एक वेरिएबल आई एम टेकिंग, और एक्सप्रेशन क्या लिख रही हूँ, नंबर मॉड्यूलस 10 2 इक्वल टू 0, अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो नंबर इज इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या अभी डिस्प्ले करवाना है मुझे, तो आउट यूज करी मैंने यहाँ पे। ठीक है, आउट वैल्यू इक्वल टू, अभी क्या प्रिंट करवाना है मुझे, नंबर इज, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या यहाँ पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, नंबर इज इवन नंबर, नंबर जो भी है, नम में क्या है 10 स्टोर है, राइट, 10 इज इवन नंबर ऐसा आएगा, तो व्हेन टैग क्लोज, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होता, ठीक है, तो कहाँ पे जाता है वो अदरवाइज में, और ये प्रिंट करवाता, नम इज आउट नंबर, नम जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल ऑड नंबर है, तो नाम अगर ये प्रोग्राम के हिसाब से कंडीशन क्या ट्रू हो रहा है, राइट, अगर यहाँ पे 11 में पास कर दूं, 11, तो 11 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, रिमाइंडर 1 आएगा, 11 से 11 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा एग्जीक्यूट, क्या आएगा फिर, नम, नम में क्या है 11 है, तो 11 इज ऑड नंबर। तो चूज व्हेन अदरवाइज इट इज लाइक जावा स्विच स्टेटमेंट, otherwise where and otherwise क्या है, it is a subtag of choose, it is a subtag of choose।
वी आर गेटिंग अंकु 10 इज इवन नंबर, राइट? नम में क्या 10 है, ठीक है ये, तो 10 इज इवन नंबर। कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है ना ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। num 10 10 divided by 10 modulus 2 is 0. Okay, so we are getting 10 is even number. Num is the variable we have passed here. इसमें क्या है 10 है, 10 is even number. Next tag is for each tag. See, for each tag you use to repeat the content for a fixed number of times. Okay, for a fixed number of times. So for a fixed number of times, if you want to repeat the content, this for each tag is used. Okay. This tag is used as a good alternative for embedding a Java while, do while or for loop via a scriptlet. Scriptlet के थ्रू, scriptlet tag के थ्रू तुम क्या embed कर सकते हो? while condition, do while और for loop ये tag में, for each में। तो अभी देखो, let's see the simple example of this tag, for each tag। जरा ये example go through करो। फर्स्ट लाइन क्या है? सिंटैक्स ऑफ syntax of importing code tag library in JSP page. ठीक है, then what we are doing, for each वेरिएबल क्या सेट किए? j, वेरिएबल j। और हम लोगों ने आइटरेशन कहाँ से सेट की? मैंने बिगिन 1 से होना चाहिए, एंड 3 से होना चाहिए, 1 से 3 जाना चाहिए। ठीक है, 1 से 3 आइटरेट होना चाहिए। देन वी आर प्रिंटिंग आउट इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्या डिस्प्ले करवाना है? जे। जे में क्या है? 1 2 3 है। ओके, तो जे यहाँ पे प्रिंट करवा दिए, वी विल गेट दी आउटपुट 1 2 3। क्या मिलेगा आउटपुट? आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, जो प्रिंट करवाए वो मिलेगा 1 2 3। बिकॉज आइटरेट कहाँ से हो रहा है? बिगिन 1 से किया, एंड किससे किए? 3। तो फॉर ईच टैग यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। used to display the result of an expression for a fixed number of time. We have taken कहाँ से स्टार्ट किए? 1 से, एंड कहाँ से किए? 3 से। For token tag iterates over token which is separated by the, see ये जो for token tag है ना, इसमें भी आइटरेट होगा। ठीक है, ओवर टोकन आइटरेशन के लिए, बट इसमें क्या होता है? इट इज सेपरेटेड बाय दी डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स लाइक इट इज यूज्ड फॉर ब्रेक अ स्ट्रिंग इनटू टोकन। एक स्ट्रिंग है पूरा, जैसे राहुल, नकुल, राजेश, तो उसको तुमको टोकन्स में डिवाइड करना है। ठीक है, एंड आइटरेट थ्रू ईच ऑफ द टोकन्स टू जनरेट आउटपुट। तो यहाँ पे डिलिमिटर क्या है? ये दिस डैश सिंबल, ये क्या है? डिलिमिटर। डिलिमिटर यूज टू separate the token. They used to break a string. Delimiter used to break the string. तो यहाँ पे मैं delimiter यूज करी, दिस डैश सिंबल, ये दिख रहा है? तो इससे क्या हो रहा है? स्ट्रिंग क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ये delimiter से क्या हो रहा है? स्ट्रिंग क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। इट इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिंग, इट इज यूज टू ब्रेक दी स्ट्रिंग इनटू टोकन। तो 3 टोकन बन गए, राहुल, नकुल एंड राजेश। ओके,
डिलिमीटर मैंने क्या पास की, ये डिलिमीटर है मेरा, ये डिलिमीटर है, राइट। देन वेरिएबल आई हैव टेकन नेम, देन प्रिंट करवा दो। ठीक है, क्या प्रिंट, नेम के अंदर राहुल नकुल राजेश, तो नेम, हाउ डू यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, राइट। अभी एक्सप्रेशन में क्या पास करोगे, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का सिंबल है ना ये डॉलर साइन, और यहाँ पे नेम लिखो, नेम इज द वेरिएबल, ओके वी हैव टेकन। तो वी विल गेट, कैसा आउटपुट का मिलेगा, सी डिफरेंट लाइंस में राहुल नकुल राजेश एक ही साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको डिलिमिटर के हेल्प से हम लोगों ने इसको ब्रेक किए, ये स्ट्रिंग को हम लोगों ने ब्रेक किए टोकन्स में। ठीक है, तो अभी इन द डिफरेंट लाइन ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, इन द डिफरेंट लाइन वी विल गेट, इन लाइन वन लाइन में हम लोग को मिलेगा राहुल, सेकंड में नकुल एंड थर्ड में राजेश, बिकॉज ये स्ट्रिंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया इनटू टोकन्स। ठीक है, तो पूरा जितने भी टोकन्स है ये थ्री, उसके उसमें क्या करेगा, इट विल आइट्रेट ईच ऑफ द टोकन्स। ओके, तो फर्स्ट राहुल, देन सेकंड लाइन में नकुल एंड थर्ड लाइन में राजेश। तो ये टैग इट इज सिमिलर टू, इफ यू सी दिस टैग इज सिमिलर टू फॉर ईच टैग। फॉर टोकन टैग जो है इट इज सिमिलर टू फॉर ईच टैग, एक्सेप्ट एक एट्रीब्यूट्स में एडिशनल एट्रीब्यूट है इन फॉर टोकन टैग, डीलिमिटर्स। ठीक है, डीलिमिटर्स एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्या है इसमें, डीलिमिटर्स विच यूज फॉर स्पेसिफाइंग द कैरेक्टर टू बी यूज एज अ डीलिमिटर। कौन सा कैरेक्टर यूज कर रहे हो सेपरेट करने के लिए स्ट्रिंग को, वो स्पेसिफाई करते हैं, विच कैरेक्टर यू आर यूजिंग टू सेपरेट दी स्ट्रिंग, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कैरेक्टर यूज कर रही हूँ, ठीक है, टू सेपरेट दी, टू ब्रेक दी स्ट्रिंग इनटू टोकन्स।